71 के हम पर थोपे गए युद्ध में बीएसएफ के जवानों ने जो वीरता दिखाई, जो योगदान दिया, उसको ना भारत कभी भूल सकता है, ना कभी बांग्लादेश ने भूलना चाहिए। 1971 সালের যুদ্ধে বিএসএফ এর সাহসিকতা এবং অবদান ভারত কোনোদিন ভুলবে না এবং বাংলাদেশকেও তা ভুলে যাওয়া উচিত নয়। আজ নয়াদিল্লিতে বিএসএফ এর একটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে ঠিক এই কথাটি বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেন 1971 সালে পাকিস্তান আরোপিত যুদ্ধে বিএসএফ এর জওয়ানরা অসাধারণ বীরত্ব দেখান এবং ভারতীয় সেনার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বাংলাদেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বিএসএফ শুধু সীমান্ত নয় বরং দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং সন্ত্রাস বিরোধী অভিযানে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। 71 के हम पर थोपे गए युद्ध में बीएसएफ के जवानों ने जो वीरता दिखाई, जो योगदान दिया, उसको ना भारत कभी भूल सकता है, ना कभी बांग्लादेश ने भूलना चाहिए। बांग्लादेश के सृजन में बीएसएफ की बहुत बड़ी भूमिका रही और अन्याय के खिलाफ लड़ने में बीएसएफ कितनी बहादुरी के साथ मोर्चा ले सकती है, इसका एक बहुत उत्कृष्ट उदाहरण 71 की लड़ाई में सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी भूमिका निभाई तब सामने आया। मित्रों, आज यहां पर सीमा प्रहरियों को अलंकृत भी किया गया, गैलेंट्री मेडल्स दिए गए, मेरिटोरियस मेडल भी दिए गए। ये जिन जवानों को मेडल मिले हैं वो प्रतीकात्मक है। उनकी ड्यूटी ऐसी जगह पे थी, उनका कालखंड ऐसा था जिसके कारण उन्होंने अपने दायित्व को अच्छे से निभाया, बहादुरी दिखाई और मेडल का अधिकार मिला। परंतु एक मानो में ये मेडल सभी सीमा प्रहरियों की बहादुरी, जज्बे और समर्पण को सम्मानित करने की एक प्रक्रिया है जो अंदर भी है, बॉर्डर पर भी है और आंतरिक सुरक्षा के लिए भी जूझ रहे हैं। ये प्रतिनिधि जो आपके आज यहां मंच पर दिखाई पड़ते थे, वो आप सभी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इन मेडल्स के लिए मैं हर एक सीमा प्रहरी को बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन करना चाहूंगा। এই অনুষ্ঠানে অমিত শাহ আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন এবং সেটি হলো পাকিস্তান প্রমাণ করেছে তারা সন্ত্রাসবাদের মদতদাতা। পহেলগাঁও কাণ্ডে পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিরা নিরীহ মানুষদের তাদের পরিবারের সামনে হত্যা করেছিল। অপারেশন সিঁদুর হলো সেই হামলার জবাব। 1971 সালের যুদ্ধে বিএসএফ এর সাহসিকতা এবং অবদান ভারত কোনোদিনও ভুলবে না এবং বাংলাদেশকেও তা ভুলে যাওয়া উচিত নয়। নয়াদিল্লিতে বিএসএফ এর এই অনুষ্ঠান পাকিস্তানকে তোপ দাগলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মন্ত্রী অমিত শাহ বলেন 1971 সালে পাকিস্তান আরোপিত যুদ্ধে বিএসএফ এর জওয়ানরা অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়েছেন। ভারতের সেনার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বাংলাদেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন অপারেশন সিঁদুর হলো ভারতের প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ় রাজনৈতিক ইচ্ছা শক্তি, আমাদের গোয়েন্দা সংস্থাগুলির সঠিক তথ্য এবং সেনাবাহিনীর আশ্চর্যজনক প্রাণঘাতী দক্ষতার একত্রিত প্রদর্শন। অপারেশন সিঁদুর তখনই গঠিত হয় যখন তিনটি একত্রিত হয়। আমাদের দেশ বহু দশক ধরে সন্ত্রাসবাদের মুখোমুখি হচ্ছে। পাকিস্তান বছরের পর বছর ধরে অনেক বড় ঘটনা ঘটিয়েছে, কিন্তু এর যথাযথ জবাব দেওয়া হয়নি। 2014 সালে নরেন্দ্র মোদী ভারতের প্রধানমন্ত্রী হন। ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে একটি সরকার গঠিত হয় এবং প্রথম বড় আক্রমণ হয় উড়িতে। আমাদের সৈন্যদের উপর তারা তাদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারার সাহস করে এবং আমরা উড়ির পরপরই সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করে প্রথমবারের মতো সন্ত্রাসবাদীদের আস্তানায় প্রবেশ করে সন্ত্রাসীদের উপযুক্ত জবাব দেওয়ার কাজটি করেছি। অমিত শাহ সাফ জানিয়ে দেন আমরা পাকিস্তানের সেনার উপরে বা তাদের বায়ুসেনা ঘাঁটিগুলিতে কোনো আঘাত হানতে চাইনি। আমাদের টার্গেট ছিল জঙ্গি ঘাঁটিগুলি গুড়িয়ে দেওয়া। আমরা শুধুমাত্র জঙ্গি ঘাঁটিতে হামলা করেছি কিন্তু পাকিস্তান তা নিজেদের বিরুদ্ধে আক্রমণ বলে মেনে নিয়েছে এবং তখনই স্পষ্ট হয়ে যায় যে পাকিস্তানি সন্ত্রাসের পৃষ্ঠপোষক।
অপারেশন সিঁদুরের মাধ্যমে বিশ্বের সামনে পাকিস্তানের আসল চেহারা প্রকাশ পেয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। आज ये अलंकरण समारोह एक प्रकार से ऐसे समय हुआ है जब बीएसएफ और सेना ने एक अप्रितम शौर्य का उदाहरण पूरी दुनिया के सामने प्रस्तापित किया है। ऑपरेशन सिंदूर ये हमारे प्रधानमंत्री की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, हमारी सूचना एकत्रित करने वाली संस्थाओं की सटीक सूचना और सेना का मारक क्षमता का अद्भुत प्रदर्शन, ये तीनों मिलता है तब ऑपरेशन सिंदूर बनता है। मैं आज ऑपरेशन सिंदूर के बैकग्राउंड की भी जरूर बात करना चाहूंगा। मित्रों, हम सभी जानते हैं कई दशकों से हमारा देश पाक प्रेरित आतंकवाद का सामना कर रहा है। सालों तक कई बड़ी बड़ी घटनाएं पाकिस्तान ने की, मगर इसका जवाब, उचित जवाब नहीं दिया गया। हम संरक्षात्मक काम करते रहे, हमारे लोगों की जान बचाने के लिए बहुत अच्छा काम हमारी पुलिस, सेना, बीएसएफ सब ने किया, मगर कभी भी उचित जवाब नहीं दिया। 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार बनी और सबसे पहला बड़ा हमला उरी में हमारे जवानों पर किया, उनको जिंदा जला देने की हिमाकत की और हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर पहली बार आतंकी ठिकानों में घुसकर आतंकवादियों को जवाब देने का काम उरी के बाद तुरंत किया। हम मानते थे कि संदेश से शायद अब सब कुछ रुक जाएगा, मगर नहीं रुका। पुलवामा में हमला हुआ, सीआरपीएफ के जवानों को आतंकी हमले में उड़ा दिया गया। भारत की सेनाओं ने एयर स्ट्राइक कर इससे उरी से कठोर जवाब देने का प्रयास किया और फिर से एक बार हमने आतंकी अड्डों को उड़ाने का काम किया। और उसके बाद पहलगांव में इंतहा ही कर दी। निर्दोष यात्रिकों को धर्म पूछकर अपने परिवार के सामने, परिवार के महिला सदस्य और बच्चों के सामने चुन चुन कर निर्ममता पूर्वक मारने का पाप पाक प्रेरित आतंकवादियों ने किया। और उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको कहा था, बिहार से कहा था कि इसका उचित जवाब दिया जाएगा और ऑपरेशन सिंदूर ये उसका जवाब है। आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है। और मैं आज इस मंच पर से सेना के उन वीर जवानों को, तीनों सेनाओं ने मिलकर जो पराक्रम किया है, वो सभी को समग्र राष्ट्र की ओर से मैं उनको अभिनंदन भी करना चाहता हूं और धन्यवाद भी कहना चाहता हूं कि आपने देश के स्पिरिट को वहां तक पहुंचाने का काम किया है जहां पहुंचाने की जरूरत थी। दुनिया भर में कई जगह पे आतंकी हमलों का जवाब दिया गया है, परंतु भारत ने जो जवाब दिया है वो एक प्रकार से अलग है। जब पहलगांव पर हमला हुआ, उसके बाद हमने 8 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। कुछ ही मिनटों के ऑपरेशन में हमने 9 आतंकी अड्डों को समाप्त कर दिया, जिसमें से 2 उनके हेडक्वार्टर थे। मगर उसमें बारीकी से समझने की यह बात है कि ना हमने पाकिस्तान के सेना के इंस्टॉलेशन को कभी तबाह किया, ना कभी एयरबेस को तबाह किया। हमने सिर्फ और सिर्फ आतंकी अड्डों को
ध्वस्त करने का काम किया जिन्होंने हमारी धरती पर गुनाह किया था। मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा, ना हमने सेना के हवा अड्डों को, स्थापनाओं को छुआ, ना उनके एयरबेस को छुआ। 8 तारीख को केवल और केवल पाकिस्तान में बसे जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा और उनके हेडक्वार्टर, ट्रेनिंग कैंप और एक प्रकार से भारत में आतंकवादियों को घुसपैठ कराने के अड्डे को तबाह किया। हम मानते थे कि इतना इनफ है और हमने तो हमला आतंकवादियों पर किया था, मगर पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि जो आतंकवाद यहां पर है वो पाक स्पॉन्सर है। आतंकवादियों पर किए गए हमले को पाकिस्तान ने अपने पर किए गए हमले में मानकर 8 तारीख के बाद हमारे देश के सिविलियन स्थान, हमारे सेना के संस्थानों पर हमला करने का साहस किया, दुस्साहस किया। हमारी एयर डिफेंस सिस्टम बहुत अद्भुत थी, कुछ बिगाड़ नहीं पाए। और जब पाकिस्तान की सेना ने हमारे सिविलियन स्थानों और हमारे सेना के स्थानों पर हमला किया, इसका प्रयास किया, 9 तारीख को भारतीय सेना ने उनके एयरबेस पर हमला कर कर एक प्रखर और कठोर जवाब देकर उनकी मारक क्षमता, हमारी मारक क्षमता का परिचय कराया और उनकी एयर डिफेंस सिस्टम को भी खोखला साबित करने का काम किया। और यहां पर भी हमने कहीं पर भी पाकिस्तान के सिविलियन स्थानों पर हमला नहीं किया था। ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की घटनाओं के कारण आज पाकिस्तान पूर्णतः एक्सपोज हो चुका है कि भारत में जो टेररिज्म है वो पाक स्पॉन्सर है। पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर टेररिज्म भारत के अंदर हो रहा है, क्योंकि जब पाकिस्तान के टेरर के अड्डों पर हमला किया, जवाब पाकिस्तान की सेना ने दिया। जो उनके आतंकवादी आका मारे गए, उनका जब नमाजे जनाजा जब हो रहा था, पूरी दुनिया ने देखा पाक सेना के आला अफसर इनके कॉफिन को कंधा भी दे रहे थे और वहां नमाज पढ़ने के लिए उपस्थित भी थे। एक प्रकार से अब तक पाकिस्तान जो डिनाई कर रहा था वो आज दुनिया के सामने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूर्णतया एक्सपोज हो चुका है कि भारत में टेररिज्म पाक स्पॉन्सर टेररिज्म है। इसमें अब दुनिया में किसी को शंका नहीं रही है। और मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर अपनी भूमि पर हुए टेरर हमलों के जवाब के इतिहास में सबसे सटीक और सभी उद्देश्यों को पूर्ति करने वाला ऑपरेशन था। और इस सटीक ऑपरेशन का न केवल भारत, पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं और हमारे सेना के जवानों की भी प्रशंसा, इनकी वीरता की प्रशंसा, इनकी मारक क्षमता की प्रशंसा और साथ में सेना के संयम की भी प्रशंसा हो रही है कि हमने केवल आतंकी अड्डों और उनके एयरबेस को ही टारगेट किया। मित्रों, 100 किलोमीटर अंदर घुसकर पहली बार हमारी सेना ने पाकिस्तान को जमीन दिखाने का पराक्रम किया है। पूरा देश सेना के जवानों पर नाज करता है, हमारे बीएसएफ के सीमा प्रहरियों पर नाज करता है। ये जब घटनाक्रम चल रहा था तब, क्योंकि युद्ध घोषित नहीं हुआ था, बीएसएफ ने भी बॉर्डर नहीं छोड़ी थी, बीएसएफ भी मोर्चे पर थी। जब उस ओर से गोलाबारी हो रही थी, सेल चल रहे थे, गोलियां चल रही थी, बीएसएफ के जवानों ने भी 1 इंच भी पीछे हटे बगैर उनके गोली का जवाब गोले से देने का काम किया और उनको ये बता दिया कि बीएसएफ 24 घंटा 365 दिन तैनात है और जब तक बीएसएफ है पाकिस्तान की सेना 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती है। मैं ये सभी सीमा प्रहरियों को भी बहुत बहुत
बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, इस ऑपरेशन सिंदूर ने आत्मनिर्भर भारत की डिफेंस प्रोडक्शन में जो स्थिति है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से आज हमने इसकी सफलता देखी है। और मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में मोदी जी के नेतृत्व में ये अभियान और चलेगा और हम आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ते चलेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ के मोहम्मद इम्तियाज अहमद और दीपक चिंगाखम ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। सेना के भी जवानों का बलिदान हुआ है। ये सभी को आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं मनपूर्वक इनकी वीरता की सराहना भी करता हूं और उनके परिवारों को बताना चाहता हूं कि आपने आपके परिवार का स्वजन जरूर खोया है, परंतु इसका नाम इस देश की आजादी की रक्षा के, इस देश के सार्वभौमत्व की रक्षा के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से हमेशा हमेशा के लिए अंकित होगा। इस हम सब के लिए गर्व का विषय है। সংবাদ এই পর্যন্তই, ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে। ধন্যবাদ।